uniform speed. Let us define uniform speed or also called constant speed. Okay, first type of speed is uniform or constant speed. So an object has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. ठीक है, सपोज कर लो कि एक कार है, राइट, वो लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है, हम उसका 10-10 मिनट्स के बाद डिस्टेंस नोट कर रहे हैं. ठीक है, किससे नोट कर रहे हैं? ऑडोमीटर से. तो आफ्टर 10 मिनट्स इट कवर्स 10 किलोमीटर, आफ्टर 20 मिनट्स it covers 20 kilometers, after 30 minutes it covers 30 kilometer and so on. तो हमारा टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है? 20 माइनस 10, 10 मिनट्स का, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 20 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, दैट इज 10 किलोमीटर. तो 10-10 मिनट के गैप पे 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है वो ऑब्जेक्ट. सो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस. So that means that speed is constant. It is moving with uniform speed. Okay, understood? तो लिखिए uniform speed की definition लिखिए. An object has uniform speed या an object is said to have uniform speed if it covers equal distances, if it covers equal distances in equal intervals of time. An object is said to have uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. As I gave you this example of car. So you won't write a car, that is not clear. You will write, if you want to write the example properly, you have to write a car covering 10 kilometer in 10 minutes, comma 20 kilometer in 20 minutes, comma 30 kilometer in 30 minutes and so on. ऐसे ही वो चलती जा रही. ठीक है, तो लिखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड का. अ कार कवरिंग 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, कॉमा 20 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, कॉमा 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स एंड सो ऑन ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल. Second example of uniform speed, you can write the speed of earth around the sun, that is also uniform. अर्थ भी जब सन के अराउंड मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस हो रहे हैं इस केस में, राइट. सो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड को हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोल देते हैं, राइट. थर्ड एग्जांपल लिखिए, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. बिल्कुल वैसे ही मून भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, राइट. इज दैट क्लियर? So these examples you can write as the examples of uniform speed. I think 3 examples are enough. Second type of speed is non-uniform speed or variable speed. तो मतलब कि स्पीड अब आपकी कांस्टेंट नहीं है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं हो रहे, दोनों में से कोई एक चीज अनइक्वल होगी. अगर हम टाइम गैप्स इक्वल ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा इक्वल कवर नहीं होगा. अगर हम टाइम गैप अनइक्वल ले रहे हैं तो हो सकता है डिस्टेंस कवर्ड इक्वल हो. मतलब एक टाइम पे एक चीज हमारी अनइक्वल होगी. So that type of speed will be called non-uniform speed or variable speed. So we will mention both the possibilities in our definition. So write the definition. When is an object having non-uniform speed? तो आपका क्वेश्चन बनेगा, when does an object have non-uniform speed or variable speed? So write down the answer. An object has non-uniform speed if an object has non-uniform speed if it covers
unequal distances in equal intervals of time, if it covers unequal distances in equal intervals of time, or equal distances in unequal intervals of time. एक टाइम पे एक चीज हमने अनइक्वल कर दी. If it covers equal distances in unequal intervals of time, or equal distances in unequal intervals of time. Do I need to repeat this, or is that okay? Is the definition okay, students? So an object has non-uniform speed if it covers unequal distances in equal intervals of time, or equal distances in unequal intervals of time. And let's write the examples. अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं. पहला एग्जाम्पल कार वाला ही ले लेते हैं. बट नाउ डिस्टेंस कवर्ड हम सेम नहीं बताएंगे. हम ऐसे लिख देते हैं, अ कार कवरिंग 10 kilometer in 10 minutes, comma 15 kilometer in 20 minutes, comma 28 kilometer in 30 minutes, and so on. मतलब कि अब आपने टाइम इंटरवल्स अगर सेम ले भी लिए हैं, डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं है. ठीक है, तो ये कार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, वेरिएबल स्पीड से जा रही है. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सो यू कांट राइट अ कार, दैट वोंट बी क्लियर कि उसकी स्पीड, क्योंकि कार वाला एग्जांपल दोनों में आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में भी आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी आ रहा है, तो आप वो नहीं लिख सकते कार. आपको बताना पड़ेगा कि कार का डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम में हम उसको ले रहे हैं. गॉट दिस? एनी डाउट अप टू हियर? सेकंड एग्जांपल लिखिए, अ मैन जॉगिंग इन अ पार्क. एक मैन जब पार्क में जॉगिंग करता है तो पहले जब फ्रेश होता है तो वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही गेट्स टायर्ड, सो ही कवर्स लेस डिस्टेंस इन द सेम टाइम. तो वो जब थक जाता है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड कम हो जाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन हिज मस्कुलर एनर्जी. सो डिस्टेंस कांट बी द सेम. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक मशीन नहीं है. So in equal intervals of time, they can't cover same distance. After some time, when he gets tired, he does not cover, he is not able to cover the same distance that he covered when he started afresh. Okay, so you can write the second example, a man jogging in a park. His speed is non-uniform. Third example, motion of a car on a crowded city road. Motion of a car on a crowded city road. अब सिटी रोड क्राउडेड है, उसमें जो कार जा रही है, जब उसको रास्ता मिल जाता है तो वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है. जब ट्रैफिक जैम हो जाता है तो वो वहीं पे खड़ी रहती है, वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाती. तो स्पीड कांट बी यूनिफॉर्म. जब हम लॉन्ग हाईवे पे जाते हैं तब तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर हो सकता है. But when the car is moving on a crowded city road, so sometimes it's likely to cover more distance, sometimes it's likely to cover less distance. So the car can't cover equal distance in equal intervals of time. So its speed is non-uniform in that situation also. Okay, students, is that clear? Is that clear? Another example, you write motion of a freely falling object. अब जैसे मैं ये चौक को नीचे गिरा दूं, ठीक है, पहले ये फास्ट गिरेगा, उसके बाद इसकी स्पीड थोड़ी कांस्टेंट हो जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगा. मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स पे इसका डिस्टेंस कवर्ड इक्वल नहीं होगा. ठीक है, सो मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. That is an example of non-uniform speed. Is that okay, students? Clear है? किसी को डाउट पूछ सकते हो आप? All right. So 2 types we have done. Third type now we come to average speed. Suppose you come from home to school by an auto rickshaw. सुबह आप ऑटो पे आते हो, that travels with 25 km/h.
ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जब आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, व्हेन यू गो बैक आफ्टर फुल ब्रेक, तो यू गो बाय फुट। सपोज आप सोचते हो कि मैं वैसे ही चली जाती हूँ। Now your speed is about 5 to 7 kilometer per hour. So you want to know that during the whole journey, you started from your home, then you reached school, then you went back to your home. So throughout your journey, what was your average speed? आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। घर से स्कूल, स्कूल से घर, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम कितना लगा वो निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे कि 25 पहले थी, 5 बाद में थी, 25 + 5 डिवाइडेड बाय 2, इनकी एवरेज नहीं निकालनी। उसका एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है दैट आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, तो लिखिए पहले डेफिनेशन, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिखिए एवरेज स्पीड of an object, average speed of an object is the ratio of total distance covered, average speed traveled, average speed of an object is the ratio of total distance covered by the object, ratio of total distance covered by the object to the total time taken, ratio of total distance covered by the object to the total time taken to cover that distance. चलो आप इतने लिख लो, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। सो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? रेशियो बोले ना हमने, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अदरवाइज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, बट एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इट विल बी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो जितना भी आपका डिस्टेंस था, पहले आने में s1, जाने में वापस s2 था, टोटल टाइम पहले आने में t1 लगा, वापस जाने में t2 लगा, तो v एवरेज, ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। This will be your formula for calculating average speed. All right. Now there is one shortcut formula of average speed if distance is same. अगर किसी केस में डिस्टेंस सेम है तो आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये कब यूज करोगे? व्हेन डिस्टेंसेस कवर्ड आर सेम। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप होम से स्कूल, स्कूल से होम जा रहे हो, इस केस में डिस्टेंस तो होम और स्कूल में सेम ही है ना, तो अगर वहां ये यूज करें तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म। इफ यू वांट हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सो लेट अस प्रूव दैट, बेटर है हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा S1 S2 सेम है। ठीक है, आप हेडिंग दे दीजिए इफ S1 S2 is equal to S, if distance is same, तब हम इसको पुट कर देते हैं S plus S, S1 भी S है, S2 भी S है, दोनों को पुट कर दिया S plus S। अब T1 कैसे लिखेंगे, ये साइड पे कर लेते हैं। We have formula of speed, distance over time, टाइम उधर ले जाइए, स्पीड इधर ले आइए, तो T will become distance over speed। ठीक है, सो यूजिंग दिस कैन वी राइट T1। T1 को क्या लिखेंगे हम? अगर यहाँ 1 किया तो यहाँ पे भी 1 करोगे, यहाँ पे भी 1 करोगे, तो T1 विल बी S1 over V1। क्योंकि S1 तो S के इक्वल है तो हम S1 नहीं लिखेंगे, S लिखेंगे। तो हाउ कैन वी राइट T1? T1 इज S over V1। सेम वे हम T2 को कैसे लिखेंगे? S over V2। देखिए ये स्टेप क्लियर है आपको कि नहीं? See if this step is clear or not. How I have written this step. अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है तो हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला,
तो हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो आई हैव पुट S1 S2 बोथ इक्वल टू S एंड टाइम को आई हैव रिटन S ओवर V1 S ओवर V2। ये क्लियर है यहां तक? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। S प्लस S कितना होता है? 2S। डिनोमिनेटर में से S कॉमन ले लिया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। देखिए ये स्टेप क्लियर है। S प्लस S आई हैव रिटन 2S और इन दोनों में से मैंने S कॉमन ले लिया, आई गेट 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। यस यस बोलो। यस एक बार नीचे वाला स्टेप फिर से रिपीट कर दो। दिस स्टेप। यस मैम। ओके, S1 S2 बोथ आर सेम, तो मैंने S1 को भी S लिख दिया, S2 को भी आई हैव रिटन S। ये क्लियर है? यस मैम। और S प्लस S यहाँ लिखा 2S। ठीक है, न्यूमरेटर क्लियर है। अब आते हैं डिनोमिनेटर। Here we have total time T1 and T2। अब बेसिकली हम टाइम को कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी जो स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये समझ आ रहा है मैथमेटिक्स? इज दिस मैथमेटिकल स्टेप? हाँ, तो बस इसको यूज करके हमने T1 को लिखा S ओवर V1 और T2 को लिखा S ओवर V2। S1 S2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए हमने उसको S1 S2 तो लिखना ही नहीं था, तो हमने उसको S ओवर V1 एंड S ओवर V2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें से S कॉमन 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया। ओके ओके मैम। ऑलराइट, नाउ कैंसिल दिस S विद दिस S। ये S इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, देखिए हमें हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। हमारा डिस्टेंस एलिमिनेट हो गया, डिस्टेंस हमें यूज ही नहीं करना पड़ेगा। स्कूल और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारे फॉर्मूला में डिस्टेंस आ ही नहीं रहा है, तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये बन जाएगा वही जो मैंने आपको बताया, 2v1 v2 over v1 plus v2। So average speed will be given by this formula if distance is same। ठीक है, ये स्कूल वाले एग्जाम्पल में 2 पार्ट्स हैं, अगर 3 पार्ट्स हैं तो भी यही फॉर्मूला चलेगा, 2 की जगह 3 कर दोगे। ठीक है, अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस वाला केस है, सो यू विल राइट 3 ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3। एक टर्म और आ जाएगी और ऊपर 2 की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड। देख लीजिए एक बार ध्यान से, इनका एलसीएम खुद लेके चेक करिए। v1 v2 v1 प्लस v2, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ऑलराइट, गॉट दिस स्टूडेंट्स? ये छोटी छोटी डेरिवेशंस आपको 9th में इंट्रोड्यूस हुई हैं, यही तो डिफरेंस है आपका। आपका लेवल इंक्रीज हो गया, दैट डे आई वाज टेलिंग यू ना कि numericals will be there, derivations will be there, so this is one very small derivation that you are doing, this is the first derivation that you have done। ये छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया है आपने, खुद उसको आपने ऑब्टेन किया है। ओके, यस, शुड वी डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला? तो आपको सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी कि कहां पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, shall we do this? Have you noted down this formula? Shall we do one numerical problem based on this? Yes students, yes or no? Okay, चलिए लिखिए first numerical on this formula। Write down, a car covers 100 kilometer of distance, a car covers 100 kilometer of distance
from point A to point B, a car covers 100 kilometer of distance from point A to point B with a speed of 40 kilometer per hour. With a speed of 40 kilometer per hour. On returning back from B to A, again covering the same distance, on returning back from B to A, again covering the same distance, the speed of car is 50 kilometer per hour. Speed of the car is 50 kilometer per hour. Calculate average speed of the car. Calculate average speed of the car for the entire journey. Calculate average speed of the car for the entire journey. पूरी जर्नी की उसकी एवरेज कितनी रही? Your parents must be calculating average if they go from one station to another station and come back the same day also. कभी आपने देखा होगा एवरेज कैलकुलेट करते, तो वो अब आप भी कर सकते हो using this formula. So let's do this, right? So we'll be using this formula. अब यहाँ पे डिस्टेंस 100 किलोमीटर का गिवन है, बट वो क्योंकि सेम है दोनों साइड्स पे, हमें इसको लेने की जरूरत ही नहीं है. डिस्टेंस को स्किप कर दो. यू जस्ट नीड v1 v2. v1 कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर पर आवर एंड v2 इज 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जस्ट पुट इट हियर. 2 into 40 into 50 over 40 plus 50 is 90. ठीक है, ये एक जीरो कैंसल आउट होगी. और अब आप देखिए इसको सॉल्व करके कितना बना आपका 400/9 किलोमीटर पर आवर. इसको पॉइंट्स में करिए, कितना आ रहा है? पॉइंट्स में 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है. पॉइंट्स में कितना आ रहा है? 44 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर आ रहा है आंसर आपका. यस और नो? यस स्टूडेंट्स, is your answer 44 point I think 9 kilometer per hour? Yes, if anyone has calculated, share your answer. Yes, Gia, what is your answer? Ma'am, 44.44 and so on. Okay, so 44.4 kilometer per hour, that is the answer, right? So this way, see how easy it is. 100 kilometer was given in the question, but we didn't use it because distance was same, so we could skip it. In our formula, there is no distance, so there was no use. We just needed the velocities and we could do this. Yes, Manyavi? The question was, a car covers 100 kilometer of distance from point A to point B with a speed of 40 kilometer per hour. ठीक है, on returning back from B to A, the speed of car is 60 kilometer per hour. 50 kilometer per hour. Calculate average speed of the car for the entire journey. Calculate average speed of car for the entire journey. Is that clear? Yes, Anshia.
मैम एक आपने कल क्वेश्चन दिया था माइक्रो सेकेंड्स वाला, वो डिस्कस करना था आपने। Okay, let us do that. Yes. चलिए, how many students have done? Is the answer yes or no? Are there more microseconds in a second than the number of seconds in a year? Is the answer yes or no? First of all, tell me, is the answer yes or no? Anyone? At least ये बताइए कि आपका आंसर नो आ रहा है कि yes आ रहा है। Yes, Anshia. मैम नो। No. Yes. No. Let us find number of seconds in a year first. One year, you know, that is 365 days. ठीक है? One day is 24 hours. 1 hour is 60 minutes. 1 hour is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. तो इस तरह से हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 365 डेज में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। ठीक है, तो ये कितना आता है साइंटिफिक नोटेशन में? कितना आता है? 3.15 आई सपोज इनटू 10⁻⁷ सेकंड्स। मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन मींस डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट इनटू 10⁻⁷ समथिंग। उस फॉर्म में इसको लेके आइए, 10⁻⁷ आ जाएगा। नाउ लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नंबर ऑफ माइक्रोसेकंड्स इन 1 सेकंड। हम ऐसे करते हैं, सेकंड लिखते हैं, इसके आगे माइक्रो लगाते हैं। 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। 1 microsecond according to the table is equal to 10⁻⁻⁶ second. ठीक है, this is giving me number of seconds in 1 microsecond. But if you read the question carefully, there what is given? Are there more microseconds in a second? वहां पे microseconds का नंबर पूछा गया है 1 second. तो means I want the reverse of this. ठीक है, तो 1 by 10⁻⁻⁶ मतलब 1/10⁻⁶ हो गया। जब पावर डिनोमिनेटर में चली जाती है तो वो नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। सो 1 माइक्रोसेकंड इज 1/10⁻⁶ सेकंड। इसको 10⁻⁶ को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर क्या रह गया? 1 सेकंड। सो 1 सेकंड इज 10⁻⁶ माइक्रोसेकंड। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देयर आर 10⁻⁶ microseconds in 1 second. But there are 10⁻⁷ seconds in 1 year. ठीक है, तो हमने पूछा था कि ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है? वो ज्यादा है, तो इसलिए हमारा आंसर नो आ रहा है। ठीक है, सो नो, देयर आर लेस number of microseconds in a second than the number of seconds in 1 year. Okay students, is this question clear to you? ये इधर उधर करना, पावर से डील करना, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो आप। यस अंशिया? मैम जो 1 ईयर वाली वैल्यू है 3.15 into 10⁻⁷, मैम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपका कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके इसको? टेल मी। मैम 3153600। 3153600 ऐसे आ रहा है ना आपका? अब मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे यहाँ तक डेसिमल लगाना है, तो कितने प्लेसेस मूव करने पड़ेंगे मुझे? देखिए कितनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट साइंटिफिक नोटेशन। मैंने उसी को लिखा है, बट मैंने यहीं तक छोड़ दिया। मैं यहाँ पे पूरा नंबर भी लिख सकती थी मैं इसको पूरा लिख सकती थी 3.153600 into 10⁻⁷ सेकंड, बट आई लेफ्ट इट। वो मेरी चॉइस है, मैं आगे जितना मर्जी लिखूं, यहाँ बेस नंबर जितना मर्जी लिख सकती हूँ। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट दैट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, उसी को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लिया, राइट?
मैम पर लेकिन जब हम इसको उसमें लिखेंगे सिंपल फॉर्म में मैम 36 की जगह भी तो 00 आ जाएगा ना। 36 की जगह 0 आ जाएगा। नहीं, Yes. अब आप इसको ओपन करिए, आपका क्या आंसर आएगा? 315 over 100 into 10⁻⁷, ठीक है। 10⁻⁷ के साथ 2 zeros आपकी कैंसिल हो गई, ऊपर 5 रहेगी। आपके पास आंसर आया 315 और 5 zeros। ये मैं लिख रही हूँ, आपके पास आंसर आया 315, 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा सा राउंडेड ऑफ आंसर आ गया आपके पास, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं Okay, पड़ा ma'am. हमारा ज्यादा, उससे ज्यादा हमें मेनली यहाँ पे 10 की पावर से मतलब था, जो हमने कंपेयर करना था। यहाँ 10⁻⁶ है तो वहां कितनी थी, 10 की कितनी जीरोस इन्वॉल्व हैं, जस्ट वी नीडेड टू फाइंड दैट, ठीक है। तो इतना राउंड अबाउट आप कर सकते हो, ठीक है। 3153600 एंड 315000000 इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so you prepare accordingly.